Assalamualaikum, this is Maria Malik and today I am here with the topic glycogenolysis. Glycogenolysis is the breakdown of the stored glycogen. What is stored glycogen? Stored glycogen is basically the inactive glucose. Glycogen was formed through the process of glycogenesis in the liver cells and adipose tissues और skeletal muscles. So जिन cells के अंदर glycogen store हुआ था उन्हीं cells के अंदर glycogenolysis होती है, means the breakdown of the stored glycogen also occur in the same cells. Then the main point to note is that glucose 6-phosphatase enzyme is present to convert glucose 6-phosphate into glucose. This enzyme is basically used at the last step of the glycogenolysis. लिवर सेल्स के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है बट इन स्केलेटल मसल्स दिस एंजाइम इज एब्सेंट. So the glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate with the help of an enzyme phosphoglucoisomerase. After the formation of fructose 6-phosphate, the cycle of glycolysis continues and then the energy pyruvate and then ATP Krebs cycle, electron transport chain, these reactions continues. Total enzyme used in the glycogenolysis are three. Number one is glycogen phosphorylase. Glycogen phosphorylase has the ability to break the alpha 1,4 glycosidic bond. Then debranching enzyme. Debranching enzyme 1 has the ability to break alpha 1,4 glycosidic bond. Debranching enzyme number 2 has the ability to break alpha 1,6 glycosidic bond. And number 3 enzyme is the glucose 6-phosphatase, which convert glucose 6-phosphate into glucose. This is the last step of glycogenolysis. In the cycle, I will explain that this enzyme also has the ability to break alpha 1,4 and debranching 1 has also the ability to break the alpha 1,4 glycosidic bond. Then why we use two different type of enzymes to do the same work? This is the cycle of the glycogenolysis. Here the cycle starts with the glycogen. You can assume that this is the liver cell or the skeletal muscle cell. Glycogen is stored. Now we have no glucose present in our body, so there is a need to break the stored glycogen and to convert it into active form so that it can provide the required energy in the form of ATP to the body cells. सो ग्लाइकोजन को सबसे पहले आके ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज इस पे एक्ट करेगा. ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ेगा. सो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं उनको ये तोड़ता जाएगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करता जाएगा. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता जाएगा सो दे आर एबल टू रन द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एंड प्रोवाइड एटीपी टू आवर बॉडी. किस स्टेप तक ये ब्रेक कर सकता है? इट विल कंटिन्यू टू ब्रेक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अप टू लिमिट डेक्स्ट्रिन. व्हाट इज लिमिट डेक्स्ट्रिन? लिमिट डेक्स्ट्रिन उसको हम कहते हैं कि लिमिट डेक्स्ट्रिन ये जो हमारे पास मेन ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है इसके साथ एक्टिवेटेड ग्लूकोज जिसके साथ यूटीपी अटैच होता है, इसके साथ ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज हैज़ द एबिलिटी टू ब्रेक ऑल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो इसकी चेन के साथ अटैच हुए होते हैं, हर ब्रांच के साथ अटैच हुए होते हैं अप टू लिमिट डेक्स्ट्रिन. लिमिट डेक्स्ट्रिन ये होता है कि इस ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन की या एक्टिवेटेड ग्लूकोज का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इसके नियर बाय 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ऊपर ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नियर बाय 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पे ज़्यादा है. उसके अलावा जो साथ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच थे उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, इसलिए ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज ने उनको इजीली ब्रेक कर लिया. अब मज़ीद उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था. तो ये है जी हमारे पास लिमिट डेक्स्ट्रिन. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ कि लिमिट डेक्स्ट्रिन के अंदर हर ब्रांच में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं. तो आंसर इज़ 4. Now an enzyme will come, that is debranching enzyme alpha 1,4 glycosidic bond. This is more strong as compared to glycogen phosphorylase. ये जो अल्फ़ा 1,4 बॉन्डिंग थी जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज नहीं तोड़ सका, तो डी ब्रांचिंग एंजाइम 1 विल ब्रेक
these 3 glucose molecules. अगर हमारे पास यहाँ पे भी चेन होगी तो उसके भी 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, क्योंकि इनके दरमियान में 1,4 बॉन्डिंग है। और ये जहाँ पे ब्रांच बन रही है यहाँ पे बॉन्ड जो था दैट वाज 1,6, इसको नहीं तोड़ सकता। जिनके दरमियान में 1,4 बॉन्ड है तो उनको तोड़ेगा। अब ये 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज़ होंगे, दे विल कम इन टू एनवायरनमेंट ऑफ ग्लूकोज, और कहाँ पर जाकर अटैच होंगे, आइदर टू दिस साइड और टू दिस साइड, इट्स अप टू यू। मैंने उसको इस साइड पे लगा दिया है। ये है जी हमारे पास इनकमिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि ब्रांच में अटैच थे, तो मैंने उसको एक साइड पर आके लगा दिया। अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि ब्रांचिंग को ख़त्म करें। जब ब्रांचिंग को ख़त्म करेंगे तो लीनियर चेन इज़ वीकर एज़ कम्पेयर टू ब्रांचिंग। तो हम मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करना चाहते हैं, उसको वीक करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल रन किया जाए और एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। सो ये 1,4 वाले हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर दिए। नाउ the turn is of this glucose and of 1,4 bond. So another enzyme will come, debranching enzyme 2, which can easily break alpha 1,6 glycosidic bond. यहाँ से bond break होगा, it can go either to this side or to this side. हम लगा देते हैं इस साइड पे। जब हम उसको इस साइड पे लगाएंगे ये आकर अटैच हो गया है, यहाँ पर आके इसने 1,4 बॉन्ड बनाया है। अब ये हमारे पास लीनियर चेन बन चुकी है। लीनियर चेन इज़ वीकर चेन एज़ कम्पेयर टू अ मॉलिक्यूल विच इज़ इन ब्रांच फॉर्म। अब दोबारा से हमारे पास आएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हैज़ द एबिलिटी टू ब्रेक 1,4 glycosidic bond, but if the molecule is making multiple bonding at one time, it is more complex, and if it is making only one bonding at one time, it is weaker. तो जब वो वीक होगा तो उसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इजीली ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक वीक चेन बन चुकी है, इसलिए यहाँ पे आप ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की हम हेल्प लेंगे। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज विल कीप ऑन ब्रेकिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट विल कीप ऑन ब्रेकिंग alpha 1,4 बॉन्डिंग until glucose 1-phosphate इज लेफ्ट। अब इसने क्या करना है, इन सारों की बॉन्डिंग को तोड़ते जाना है, ग्लाइकोजन प्राइमर को भी तोड़ देना है, यहाँ से यूरिडीन डाइफॉस्फेट को भी तोड़ देना है। ओनली ग्लूकोज 1-phosphate, दिस वन इज लेफ्ट। ग्लूकोज 1-phosphate इज लेफ्ट। नाउ हमने देखा था ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस में म्यूटेज एंजाइम आया था जिसने ग्लूकोज 6 को ग्लूकोज 1 में कन्वर्ट किया था। अब वही एंजाइम आएगा जो इसको बैक ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करेगा। हेयर एन एंजाइम कम phosphoglycomutate. It will mutate the position of phosphate from carbon number 1 to carbon number 6 on glucose molecule. Now we have 2 steps. हमारा पर्पस तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करना है ना, हमारा पर्पस तो एटीपी प्रोड्यूस करना है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो हम वो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। ग्लूकोज 6-phosphate आइसोमेरेज आके इसको एज एन इंटरमीडिएट ले और फ्रुक्टोज 6-phosphate में भी कन्वर्ट कर सकता है। यही फ्रुक्टोज 6-phosphate फ्रुक्टोज 1,2-bisphosphate में कन्वर्ट होगा एंड देन द ग्लाइकोलाइसिस कॉन्टिन्यूज। Another enzyme can also start the glycolysis process। किस तरह से ग्लूकोज 6-phosphatase ग्लूकोज 6-phosphate को कन्वर्ट कर सकता है इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर से एंटर हो सकता है इनटू ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि इस तरह से भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है आइसोमेरेज की हेल्प से, और फॉस्फेटेज की हेल्प से भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। ये दोनों एंजाइम्स आइसोमेरेज और फॉस्फेटेज, these both are present in the liver cell, but this phosphatase enzyme is not present in the skeletal muscle cell।
हमारे स्केलेटल मसल के अंदर जो स्टेप होता है, साइकिल है, वो इस तरह से रन होता है। हम इसको अगर डिलीट कर देते हैं तो ये ग्लाइकोजन और ये साइकिल इस तरह से यहाँ पे जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, and then in the skeletal muscle an enzyme will come that is called isomerase which will convert it into fructose 6 phosphate और फिर फर्दर कंटिन्यू होगा ग्लाइकोलाइसिस। जबकि लिवर सेल के अंदर आइसोमेरेज भी ग्लाइकोलाइसिस को आगे रन कर सकता है और फॉस्फेटेज भी कर सकता है। वी हैव टू ऑप्शंस इन लिवर सेल बट नॉट इन skeletal muscles. This was all about the glycogenolysis. If you have any question, you can ask me. Plus, I have also uploaded the quiz under the description section. Have a look, kindly solve it. And if you have any question, you can ask me. Thank you so much.